everyone. Good morning, all of you. How was everyone doing? I hope you all are doing well. So, student, yesterday we discussed about motions. Yes, we learn about periodic motions, circular motion, and also we learn about straight motions. Yes, and also we discuss about time and its units. Yes. So, student, today we are going to learn about measuring speed. Okay, how to measure speed, and also we discuss about distance time graph. Okay, so student, in this distance time graph, on x-axis we write time and on y-axis we write distance. Okay, so student, let's see this two topic in details. Okay, measuring speed. Having learned how to measure time and distance, you can calculate the speed of an object. Let us find the speed of a ball moving along the ground. So student, अभी हमने टाइम और डिस्टेंस के बारे में पढ़े थे, तो अभी हम टाइम और डिस्टेंस का यूज़ करके अभी हम स्पीड कैसे निकालते हैं अभी हम वो स्टडी करेंगे. तो उसके लिए एक एक्टिविटी दी है, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑन अ ग्राउंड विथ चॉक powder or lime and ask one of your friend to stand 1 to 2 meter away from it. Let your friend gently roll a ball along a ground in a direction perpendicular to the line. Note the time at the moment the ball crosses the line and also when it comes to rest. How much time does the ball take to come to rest? So student, यहाँ पे एक एक्टिविटी करना है. जैसे देखो ये बच्चे ने किया हुआ है, तो ये एक लाइन ड्रॉ करना है, इधर अपने एक फ्रेंड को रखना है और यहाँ से देखो क्या कर रहे हैं, बॉल को मतलब पुश कर रहे हैं. तो देखो वो जो उसकी स्पीड है वो दिखाई दे रही है. तो ये आपको नोट करना है कि जो कितना टाइम ले रहा है बॉल अपने रेस्ट पोजीशन में आने के लिए. ओके, measure the distance between the points at which the ball crosses the line and the point where it come to rest. तो ये कितने टाइम में जो लाइन है उसको क्रॉस करता है वो आपको मेज़र करना है, और रेस्ट मतलब कब वो रेस्ट मतलब रुक जाता है वो भी आपको मेज़र करना है. ओके, you can use a scale or measuring tape. The different type repeat the activity, record the measurements in table 13.3. In each case calculate the speed of the calculate करना है speed of the ball. You may now like to compare your speed walking and cycling that your friends. You need to know the distance to the school from your home. फ्रॉम तो ये एक्टिविटी है आप लोगों के लिए. आपको कंपेयर करना है कि आप अपने मतलब फ्रेंड के साथ स्कूल जाने में कितना टाइम लगता है, क्या लगता है. ओके, speed of some living organism are given in table 13.4 in kilometer per hour. You can calculate the speed in meter per second. So student, ये आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो दी हुई है. तो आपको उससे क्या करना है, किलोमीटर आवर में दी हुई है तो आपको मीटर पर सेकंड में उसको कन्वर्ट करना है. तो मीटर में और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, इससे उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो सेकेंड है मतलब मिनट्स 60 मल्टीप्लाइड 60 मतलब यहाँ पे तो 360 सेकेंड से उसको क्या करना है, डिवाइड करना है. तो इस प्रकार क्या निकल जाएगा, मीटर पर सेकेंड में स्पीड निकल जाएगी. Rocket launching satellites into the Earth orbit often attain speed up to 8 km per second. On the other hand, a tortoise can move only with a speed of about 8 centimeters per second. Can you calculate how fast is the rocket compared with the tortoise? Once you know the speed of an object, you can find the distance moved by it in a given time. All you have to do is multiply the speed by time. 10. देखो डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकालेंगे, स्पीड कितनी है उसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे उसका टाइम, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है वो निकल जाएगा. कैन यू ऑल्सो फाइंड द टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट वुड यू टेक टू कवर अ डिस्टेंस व्हाइल मूविंग विद अ गिवन स्पीड. तो टाइम कैसे फाइंड करेंगे हम, टाइम टेकन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो जितना डिस्टेंस उनने कवर्ड किया है उसके अपॉन में कर देंगे स्पीड, तो उनको टाइम कितना निकला वो निकल जाएगा. ठीक है, भुजो वांट टू नो वेदर देयर इज़ एनी डिवाइस दैट मेज़र द स्पीड. तो भुजो बोल रहा है कि क्या स्पीड को मेज़र करने के लिए क्या कोई दूसरी डिवाइस नहीं है. यू माइट हैव सीन अ मीटर फिटेड ऑन अ टॉप ऑफ अ स्कूटर और मोटरसाइकिल. सिमिलरली मीटर्स कैन बी सीन ऑन द डैशबोर्ड्स ऑफ कार्स, बसेस एंड अदर व्हीकल्स. सो स्टूडेंट,
आप लोगों ने ऑब्जर्व किए होंगे कि स्कूटी, बस, मोटरसाइकिल पे क्या रहता है, एक उनके डैशबॉक्स पे एक मीटर रहता है, ऐसे है ना। तो जो कि क्या मेज़र करता है, स्पीड उस व्हीकल्स की। यस, तो वो जो है वो क्या लिखा रहता है, दिस इज कॉल्ड स्पीड मीटर। वो है एक नोट दैट वन ऑफ द मीटर हैज़ किलोमीटर पर आवर, वहाँ पे जो ये रहता है उसी को ही क्या कहते हैं, स्पीड मीटर। इट रिकॉर्ड द speed directly in kilometer per hour. There is also another meter that measure the distance covered by the vehicles. This meter is known as odometer. एक जो है, जो भी अनदर मीटर है, दूसरा मीटर है जो कि डिस्टेंस कितना मूव हुआ है वो मेज़र करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओडोमीटर। While going for a school picnic, Paheli decided to note that the reading on the odometer of the bus after every 30 minutes till the end of the journey. Later on, she recorded her reading in table 13.5. ये देखो, उसने ओडोमीटर की जो रीडिंग है और डिस्टेंस जो स्टार्टिंग का उसने यहाँ पे लिख के रखी है, और उसके हेल्प से उन्होंने क्या बनाई है, now distance time graph. You might have been seen that newspapers, magazines, etc. present information in various फॉर्म ऑफ द ग्राफ टू मेक इट। यस, सो स्टूडेंट, हम लोग ने न्यूज़पेपर मैगजीन पे देखा है कि बहुत सारी ग्राफ बनी हुई रहती है। यस, सो ग्राफ मेक इट इंटरेस्टिंग। द टाइप ऑफ अ ग्राफ शोन इन द फिगर 13.8, ये जो ग्राफ दी हुई है ये क्या शो कर रही है, अ बार ग्राफ शोइंग रन्स स्कोर टीम इन ईच ओवर। तो हर एक ओवर पे कितने रन्स हुए, ये ग्राफ क्या कर रही है, शो कर रही है। सो ये जो ग्राफ है क्या बता रही है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ लाइन ग्राफ, लेट अस लर्न टू मेक सच अ ग्राफ। तो अभी हम पढ़ते हैं कि ये ग्राफ जो है डिस्टेंस और टाइम कैसे बनाते हैं, अब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इस प्रकार आपको दो लाइन ड्रॉ करना है, जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है, टेक अ शीट ऑफ अ ग्राफ, ड्रॉ टू लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन इट, शोन इन द फिगर 13.11। ये देखो, ये जो है ना, ऐसे ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर टू लाइन्स, देन मार्क द हॉरिजॉन्टल लाइन। सो स्टूडेंट, ये आप लोगों को एक बार स्टडी कर लेना है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, आपको ये समझ में आ जाएगा ग्राफ, ठीक है। उसके बाद में है ये ग्राफ बनाना है टाइम और डिस्टेंस की ग्राफ। सो अभी हम देखते हैं ये जो फिगर है 13 पॉइंट, ये तो ये टाइम और टाइम जो है, इधर टाइम दिया हुआ है, इधर डिस्टेंस दिया हुआ है, तो इस प्रकार जो है ग्राफ बनाना है। तो आई होप ये आपको ग्राफ समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ये ग्राफ कैसे बनाना है उसके यहाँ पर स्टेप दिए हुए हैं, तो आप लोगों को ये स्टेप को अच्छे से एक बार पढ़ना है, तो आपको ये इजीली किस प्रकार ये जो कितनी, ये देखो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, ये जितनी भी है, देखो कि यहाँ पे क्या लिया हुआ है, जो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, उन्होंने क्या लिया, 1, देखो टाइम में देखिए उन्होंने क्या लिया हुआ है, 1 मिनट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर लिया हुआ है, और 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे ये 1 मिनट है, तो 1 सेंटी, ये 1 यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू उन्हें 1 मिनट लिया हुआ है, और 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर लिया हुआ है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्या है, ये देखो पॉइंट, सेकेंड देखो, 1 टाइम कितना है 1 मिनट, और डिस्टेंस कितना है 1 मिनट। तो देखो ये टाइम हो गया 1 मिनट, और ये देखिए 1 मिनट। फर्स्ट वाला क्या है 0 0, तो 0 0 यहाँ पे ही आएगा। फिर बाद में क्या किया हुआ है, सेकंड में देखो टाइम मिनट 2 मिनट दिया हुआ है, और 2 किलोमीटर, तो ये यहाँ पे पॉइंट बना। उसके बाद में तो इस प्रकार ये देखो यहाँ से फिर स्ट्रेट लाइन क्या हो गई, ड्रॉ, फिर 3, ये 3, 4, ये 4, ये 5 और ये 5। ओके, सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आई होगी, एक ऐसा टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ बना हुआ है, बहुत इजी है। तो ये दूसरी ग्राफ बनी हुई है जिसमें टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है किलोमीटर में। ओके, तो यहाँ पे क्या किया है, 5 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर है, ओके, और 6 मिनट इक्वल्स टू कितना है, 1 सेंटीमीटर। यस, सो आपको एक ड्रॉ करना है, कैन यू ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ द बस। तो ये इस प्रकार जो आपको डाटा दिए रहेगा, तो उसके हेल्प से आप लोगों को ऐसे ग्राफ बनाना है। ओके, सो स्टूडेंट, आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है कि कैसे ग्राफ बनाना है। सो स्टूडेंट, हियर आवर लेसन इज़ completed, सो नेक्स्ट लेसन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टूडेंट, टिल